Hello guys, welcome back to my channel RTL Forge, and I will explain our project is AMBA ASB based protocol project. Let me some explain what is AMBA ASB and what is the protocol and how it is work. Firstly, the AMBA protocol is a advanced high performance bus, is a part of the ARM AMBA advanced microcontroller bus architecture family, and the design to support of the high performance and high bandwidth communication between the different components in a system on chip SoC. And AHV provides a single clock edge operation, burst operation, and the pipeline structure, making it the suitable for the high speed designs. Let me some explain. The AMBA is set of the specification developed by ARM to standardize the communication between the different functional blocks on SoC. And AMBA consists of the multiple protocols like AMBA HB, AMBA APB, AMBA AXI. And let me some explain what is a protocol and how it is work. Protocol is a set of rules certain by the input and output parts. There are the two types of protocol: SoC protocol, on-chip protocol, and peripheral protocol in our VLSI industry. SoC protocols like AMBA HB, AMBA APB, and AMBA XI, and peripheral protocols like UART, I2C, IP, SPI, CAN, USB protocol, and whatever. Advanced microcontroller bus, the architecture is of the specific developed by the ARM2 who ARM to communication between the functional block of an SoC. मतलब कि आम्बा एंड ए पी बी एच ई प्रोटोकॉल है, वो पेरिफल बस है जो अपने मास्टर और स्लेव के बीच में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं ये प्रोटोकॉल. ASP protocol is a high speed and high bandwidth required. APB protocol is a low power, low bandwidth and peripheral bus provided. And XI protocol is the most useful protocol in VLSI industry because it is a high performance, low latency and high bandwidth application. Let me some explain our part of the AHV. AHV protocol defines the interaction between the three main components parts like master, slaves and interconnects. Let me some explain master parts of AHV protocol. Let me some explain our AHB master block diagram. AHB master is a advanced high performance bus. Provides some clock and reset signal is a 0 to 1 and 1 to 0. Reset 0 to 1. H ready provides a 0 and 1. H ready means 0 होगा तो वो स्लेव के लिए स्लेव कोई भी डेटा नहीं मांग रहा है. 1 होगा तो स्लेव डेटा मांग रहे हैं. एच रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ओके एंड एरर प्रोवाइड एच रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0 provide the error, and 1 is equal to okay our input and output peripheral bus. SR data is our actual data of the 32 bits, and the write top means write operation is equal to 0 and 1 मतलब कि read operation is our run. Data is our actual 32 bits, and the H address provides some address of the 32 bits. HW data provides some मतलब कि यहाँ पे जो जहाँ पे भी एच एच है, मतलब कि मैंने ए पी बी वाले वीडियो में बताया था कि ए पी बी मतलब कि पी 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 होगा, मतलब कि ये पी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाएगा सारी पिन. एच बी मास्टर प्रोटोकॉल है तो उसमें एच से एच अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करवा जाएगा. एक्स आई होगा तो उसको ए अल्फ़ाबेट से डिनोटेड किया जाएगा. लेट मी सम एच डब्ल्यू डेटा प्रोवाइड सम 32 बिट्स, एंड एच राइट पिन provide some 0 and 1. H write is equal to operation is our write, and 1 is equal to read operation is our run. H size protocol is a 0 to 2. This is a simple pin of the H size and H trans. H bus is equal to 0 to 2, and these are enable pin. Bit length is equal to 0, 1, 2 and 3, and the address stop is equal to 32 bits, and the rep enable pin. This is a simple block diagram of HB master. Let me some explain our Verilog code in EDA playground. Simple project run and write the very simple Verilog code in my EDA playground bench.
These are simple time declaration of time scale 1s to 1ps, module declaration of the module, and name of the module is equal to ASB master. The simple pin required of the clock and reset pin, H clock and H reset pin, एंड यूज़र इनपुट मतलब कि यहाँ पे जो यूज़र जो रिकॉर्ड करेगा वो पिन है इनेबल पिन 0 and 1, डेटा इन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, डेटा इन बी इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू एड्रेस, मतलब कि कोई भी एड्रेस पे वो डेटा स्टोर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे राइट पिन है तो राइट पिन वो हाई रहेगी, तभी डेटा इन ए प्लस डेटा इन बी होगा और वो वही एड्रेस के अंदर अपना डेटा स्टोर हो जाएगा। लेट मी सम एक्सप्लेन ASB स्लेव इनपुट पिन इज इक्वल टू 32 bit our HR data and 2 bit is equal to slave selected pin। this simple response and ready to out, रेडी जब 0 and हाई होगा तभी वो स्लेव आने को देगा अपने डेटा को उसके अंदर। एंड दिस सिंपल रिस्पॉन्स प्रोवाइड द एरर is provided, the response pin is equal to low, and these are okay. A peripheral handshake provides some 1. This AHB master output pin is equal to 0 1 and to the selected pin. 32 is our H address, provides some all address location is different vary. 32 bits provides some H size, 2 H words, 8 protects 8 protect this our H trans 8 this H protects अपना सेम रहेगा 00 and 11। HW data is equal to write the data in our 32 bit। user output is equal to 32 bit data is equal to dot pin, and H ready is equal to high, मतलब कि H ready हाई होगा तो स्लेव इनपुट रन करेगा और डाउट के अंदर अपना डेटा स्टोर हो जाएगा। These are HB transfer types like these are simple parameter of the state diagram. State diagrams are idle, busy, non-sequential, and sequential, एंड प्रोवाइड सम 00 01 10 11 एंड FSS स्टेट के अंदर हम इसको इस रूप में लिखेंगे पैरामीटर के आइडियल, सेटअप, राइट एंड रीड। पहले आइडियल स्टेट में कोई भी डेटा फ्लो नहीं होगा, सेटअप के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, रीड के अंदर कंज्यूमर को चाहिए और अपना ये वाला पिन अगर जो हाई होगा H ready out तो वो उसको दे देगा डेटा। द सिंपल फंडा ऑफ द HB प्रोटोकॉल FSM स्टेट एंड रजिस्टर, टू स्टेट रिक्वायर प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, provide some data register in the write the data of 32 bit state register। let me some explain our code run is this line, provide some process clock and negative clock, reset pin, फ्लिप फ्लॉप मतलब कि यहाँ पे स्टेट मशीन है, मतलब कि नेगेज कॉक भी यहाँ पे अप्लाई होगा और प्रोसेस कॉक भी। अगर एच रिसेट पिन इज इक्वल टू 0 है तो वो अपना जो डेटा है वो आइडल स्टेट के रहेगा और आइडल स्टेट ही अपना नेक्स्ट स्टेट बन जाएगा। प्रोवाइड सम नेक्स्ट डेटा, मतलब कि अभी धीरे धीरे आगे हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट में चला गया तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर 4 स्टेट आएगी, आइडल स्टेट, सेटअप स्टेट, राइट स्टेट एंड रीड स्टेट। let me some explain one by one। next state provide the next state is equal to our present state। अब प्रेजेंट स्टेट है जो अपना वो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। फिर आइडल स्टेट आएगा कि आइडल स्टेट में कब होना चाहिए कि इनेबल पिन इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब कि अब यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू सेटअप स्टेट, एंड अगर 1 होगी तो सेटअप, लो होगी तो आइडल। सिंपल स्टेट, सेटअप स्टेट मतलब कि क्या होगी, इसमें 2 वो स्टेट प्रोवाइड हो गए सेटअप के अंदर। अगर राइट पिन 0 होगी तो राइट ऑपरेशन और राइट पिन 1 होगी तो रीड ऑपरेशन। राइट पिन जब भी 0 हो रही है तो यहाँ पे डेटा सेटअप के अंदर है, अगर नहीं हो रही है तो आइडल के अंदर है। और ये एच रेडी आउट मतलब कि यहाँ पे अभी 0 है तो अभी वो स्लेव को वो डेटा नहीं देगा। दिस अवर रीड स्टेट प्रोवाइड सम एच रेडी आउटपुट इज इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पे ये जो डेटा है वो रीड करने के लिए स्लेव तैयार है, मतलब कि यहाँ पे इनेबल पिन आ जाएगी और रीड हो जाएगा डेटा अपने नेक्स्ट स्टेट के अंदर। दिस आर सिंपल डिफॉल्ट स्टेट होता ही है हर बार, और अपने 3 स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड डिफॉल्ट स्टेट। डिफॉल्ट स्टेट अवर आइडल स्टेट प्रोवाइडेड। let me some explain the value of output logic and default the values like 00। ऑल पिन में अगर 00 है तो अभी कोई भी डेटा फ्लो नहीं होगा फ्लो पाथ में। दिस अ प्रेजेंट स्टेट प्रोवाइड द केस। इट मीन सम एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट इज अवर आइडल स्टेट प्रोवाइड सम ऑल द वैल्यू इज अवर 0 एंड
prompt is equal to 001. This is the fixed pin of my project ASP protocol. This setup pin, this H size burst and prod. This pin is always same. The pin in all state or setup, write and read state. सिलेक्टेड पिन इज इक्वल टू स्लेव सिलेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे स्लेव सिलेक्टेड पिन हो गया, मतलब कि यहाँ से हम ट्रांसफर शुरू कर पाएंगे. दिस एड्रेस प्रोवाइड सम एड्रेस एंड राइट पिन इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ट्रांसफर द अवर डेटा इज अवर नॉन सीक्वेंस, मतलब कि यहाँ से अपना जो वो डेटा है वो ट्रांसफ़र होने का शुरू हो जाएगा. And write the data is equal to in A plus in B. This is the HW data, is this is actual data, and data in A and data in B, this is a temporary data, मतलब कि data in is equal to is 10 and B and the HW data is equal to 20. This is a simple funda of the right data. H ready is equal to 1 dash is equal to B0, मतलब कि H ready अभी 0 है. फिर जब भी H ready is equal to 1 होगा, ये तीन पिन तो सेम ही रहेगी. और जब एच राइट डेटा 1 हो रहा, मतलब अभी रीड का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. स्लेव अभी चालू है, और जब भी एच रेडी पिन इज इक्वल टू एच रेडी आउट होगी, तभी अपना सारा डेटा रीड हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा स्लेव के अंदर. एंड दिस अ सिंपल डिफॉल्ट स्टेट प्रोवाइड. अगर कोई भी डेटा नहीं चाहे तो वो 0 दे देगा. एंड दिस इज द रीड कैप्चर, मतलब कि ये दिस इज अवर sequential components of my code. These are always provided. एंड दिस रिसीट पी प्रोवाइड द वन डाउट इज इक्वल डाउट. मैंने बोला था डाउट के अंदर अपना जो राइट डेटा है वो स्टोर होगा. हेक्साडेसिमल राइट द डेटा अवर एक्चुअल डेटा इज इक्वल टू स्लेव द राइट डेटा, मतलब प्रेजेंट स्टेट. दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई कोड. इफ द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट इज इक्वल टू 0, सेटअप हुआ एंड राइट हुआ, तो देन राइट डेटा हो जाएगा और डेटा इज इक्वल टू इन ए एंड इज इक्वल टू इन बी. अगर वो सेव हो जाएगा राउट के. अब डेटा को ट्रांसफर करना है तो तीन कंडीशन अलाउ होनी चाहिए. प्रेजेंट डेटा इज इक्वल टू रीड में होना चाहिए, एच रेडी भी हाई होनी चाहिए, एंड एच रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए हाई के रूप में, मतलब कि ये जो डेटा है डेटा पाथ है वो ट्रांसफ़र के लिए तैयार है. ओके पिन ऑफ द रिस्पॉन्स हाई एंड डाउट इज इक्वल टू एच डेटा. ऑल डेटा इज स्टोर इन अवर डी डाउट, मतलब कि डाउट पिन के अंदर. Let me some explain our test bench code in EDA playground. They easily write and easily funda of the test bench code. Let me some explain one by one. Module declaration of the TB AHB master timescale is equal to 1:1 PS. Provide the all input pin is equal to who represent of the register, and all output pin is represent in a wire. This is a simple dot operation. Provide the h clock to h clock, h reset to ये दिस डॉट ऑपरेशन में क्या होगा कि जो भी टेस्ट बेंच पिन है वो कनेक्ट हो जाएगी अपने रियल बेंच के अंदर, और अपना कोड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. दिस क्लॉक जनरेशन प्रोवाइड द 10 NS, मतलब 5 NS के बाद जो है वो अपना क्लॉक 0 टू हाई एंड हाई टू 0 हो जाएगा. दिस आर सिंपल क्लॉक डिक्लेरेशन इज पिन एंड प्रोवाइड सम द सिंपल स्लेव मॉड्यूल. यहाँ से अब अपना जो टेस्ट बेंच कोड है वो शुरू हो रहा है. दिस रजिस्टर पिन इज 32 बिट एंड मेमोरी ओवर 16 बिट, मतलब कि 16 बिट लोकेशन के अंदर ऑल लोकेशन के अंदर 32 बिट का रजिस्टर स्टोर हो रहा है. मतलब कि मेमोरी 0 है तो उसके अंदर भी 32 बिट का डेटा स्टोर होगा. मेमोरी 13 है तो उसके अंदर भी 32 बिट का रजिस्टर का डेटा जो है वो स्टोर होगा. लेट मी सम एक्सप्लेन द ऑलवेज द प्रोसेस क्लॉक इज इक्वल टू 1 एंड रिसेट पिन इज इक्वल टू 0 एंड द एच रेडी आउट पिन इज इक्वल टू 0 एंड ESP अवर रिस्पॉन्स पिन इज इक्वल टू. अभी तो कोई भी पिन 0 सारी पिन 0 रहेगी, क्योंकि अब रिसेट पिन इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी डेटा पाथ अभी बनेगा नहीं और डेटा इज इक्वल टू 0, नो चेंज डेटा रहेगा. And the simple fundamental of the for loop provides them 16 bit data is equal to 1 plus 1 is equal to 1 and 50 आ जाएगा and then 60 आएगा तो फिर रन नहीं करेगा. else condition of the slave is ready. जो स्लेव है वो अभी रेडी है एंड ओके रिस्पॉन्स 0
मतलब कि मैंने बोला था कि ये जो रिस्पॉन्स पिन है वो ओके एंड एरर प्रोवाइड करेगी, स्लेव जो पिन है वो एच रेडी आउट 1 एंड 0 प्रोवाइड करेगी। राइट द डेटा प्रोवाइड सम 0 0 एंड दिस पिन इज इक्वल टू ऑलवेज सेम राइट ऑपरेशन के लिए, एंड दिस इज द डिस्प्ले प्रोवाइड द राइट ऑपरेशन, and this is a simple write operation, and as it is all operation is same our read operation. This is a test sequential. Let me some explain the provide the initial value first is equal to 0 0 0 and our h reset pin is equal to 0 and then reset pin is equal to 1. फिर से अगर कोई भी डेटा नहीं फिर से हाई एंड फिर से अब राइट डेटा शुरू होगा 10 + 20 इज इक्वल टू 30. टेस्ट 1 इज इक्वल टू राइट स्टेट our display operation. Enable pin is equal to 1, write pin is equal to 1, adder is equal to 4 एंड दिस सिंपल हेक्साडेसिमल में है इसलिए इसको ए एंड देन इज इक्वल टू 14. नेगेज क्लॉक प्रोवाइड करेगा, इनेबल पिन 0 हो जाएगी एंड राइट ऑपरेशन 0 हो जाएगा एंड देन वेट करेगा 20 NS के लिए. देन अवर टेस्ट 2 इज इक्वल टू रीड ऑपरेशन प्रोवाइड सम अनदर वैल्यू लाइक सॉरी नॉट इज अनदर वैल्यू. अब वो जो राइट डेटा वो स्टोर होगा वो रीड करेगा 30 NS 30 मतलब कि जो अपना ऊपर आया था 10 + 20 इज इक्वल टू 30. अब वही डेटा वो रीड करेगा. उसके लिए राइट पिन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इनेबल पिन 1 होनी चाहिए और एड्रेस तो वही रहेगा जो अपने ऊपर रहेगा वही, और एनेबल पिन इज इक्वल टू 0. दिस प्रोवाइड द डिस्प्ले ऑपरेशन ऑफ द रीड ऑपरेशन स्टोर द डेटा इन अवर डाउट पिन. Our second write is equal to another input pin like a 32 and E provide some data in and data and our output pin is equal to 64. 50 + 40 is equal to 64 and फिर उसको रीड करेगा एंड ई पी वेव. दिस सिंपल फंडा ऑफ द ई पी वेव में डेटा को ई पी वेव के अंदर वो बता देगा. लेट मी सम एक्सप्लेन द रन द प्रोग्राम. सिलेक्ट द बेस्ट सिमुलेशन एंड टूल्स. Let me some explain our EP waveform in AHV based protocol. Is a simple address pin provide some address in data. These are data in and data in B pin. This is a dot data provide the dot data provide the some output of the data in store. This is enable pin 0 and 1. This is our H address pin provide the address in AHB data. This is a burst pin for always 0. Clock pin reset the 0 and 0 1 is a 5 NS clock 5 NS time. These are port protection declaration is our 3 because 0 0 1 1. These are fixed pin. This is HR data provide some 0 and 1 and 4. This is actual pin provide the store the data in this line 1 and 14. Okay, let me some explain H ready out, H reset and H response. H size is equal to fix pin is equal to 2, H trans is equal to 0 and 2, H trans is equal to 0 no and 2 is equal to high 0 and 2. in other word this is H trans H trans होगा. फिर H W data provide some data is equal to 1 E and 40 and then otherwise provide some 1 E and 1 E provide some 40 and 40. This is H write provide the always 1 and 0 enable pin. Let me some explain about the scenario table. This is 0 0 0 provide the no change data. Slave selected pin is equal to 1. Let me some explain one by one. Provide the some address is equal to 4, data is equal to A and 14 and our output become is equal to 1 and store the always this is our write operation provided, but read operation is not provided because the H reset pin is equal to 0, ready out and H ready is equal to 0. Let me some H reset pin is equal to 1, H ready out pin is equal to 1 and H ready is equal to 1. फिर उसके बाद 1 ही डेटा स्टोर होगा अपने H डेटा के मेन डेटा के अंदर. उसके पहले कौन से कंडीशन 1 होनी चाहिए? H रेडी 1, H रेडी आउट 1 एंड देन H रिसेट पिन 1 होनी चाहिए.
तभी वो डेटा स्टोर होगा 1 NE के अंदर। पहले आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले डेटा डाला है 4 एड्रेस के अंदर कि पहले एड्रेस लिख लो और फिर डेटा को डाला, डेटा को फिर उसको स्टोर करो। तो फिर अभी अभी स्टोर नहीं हुआ है 1 E डेटा, एंड फिर देन लो एंड देन फिर से 1 रिक्वेस्ट डाली 4 एड्रेस के अंदर डेटा को स्टोर करो, एंड देन फिर वो डेटा को स्टोर कर रहा है डाउट के अंदर। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 4 जब भी 4 ने रिक्वेस्ट करी तब राइट इनेबल पिन आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है। बिकॉज मैंने बोला था राइट पिन इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड द रीड ऑपरेशन इज रन, एंड राइट पिन इज इक्वल टू 0 प्रोवाइड द राइट ऑपरेशन। मतलब कि राइट पॉइंट जब भी 0 रहेगी तभी वो डेटा को स्टोर कर पाएगा डाउट या HR डेटा के अंदर। अभी अभी हाई है तो वो नहीं कर रहा है, एंड देन फिर से लो होगी एंड फिर से वो रिक्वेस्ट करेगा HR के लिए, फिर से वो एच रेडी पिन अभी यहाँ पे देखो हाई हो रही है, एंड फिर से जब एच राइट पिन 0 है तब डेटा HRW डेटा पिन और ये डाउट डेटा पिन के अंदर स्टोर हो रहा है। And this is our second scenario for the 832 and E. This is our hexadecimal number. Provide some addition and answer is equal to 14. This is a simple data is equal to 2 scenario. First is a 1E and second is equal to 14. 14 में भी वही सीक्वेंस हो रहा है कि जब भी 8 मैंने रिक्वेस्ट डाली तब एच राइट पिन इज इक्वल टू 1 हो रही है, मतलब वो डेटा को फ्लो नहीं करेगा। देन 0 एंड देन रिक्वेस्ट डाली 1, अब पर यहाँ पे एच राइट पिन इज इक्वल टू 0 है, फिर वो डेटा को स्टोर कर देगी 40 के अंदर और डेटा अपना डाउट या HR डेटा के अंदर स्टोर हो जाए। दिस अ सिंपल वे फॉर्म रन इज माई AHV मास्टर प्रोटोकॉल, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। एंड अगले वीडियो में मैं AHV स्लेव कोड एंड उसका वे फॉर्म एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू गाइस।